Let's understand little bit about dihybrid cross. We are going to solve these crosses in classroom, but still I am giving you little introduction to this dihybrid cross so that we can understand our second law of Mendel. Because we have already done the first law of Mendel's inheritance, which we know that after his death it was proposed by his students. And the second law, which we are going to understand through this dihybrid cross, that's the law of segregation, or you call it as law of purity of gametes. Okay, so now this example in front of you, it is a dihybrid example. मतलब पेरेंट्स के दो कैरेक्टरिस्टिक्स, opposite characteristics is being considered. We can say two traits are being taken in hand to cross, and the resultant product which we get, let's see here, this is the parent with round is dominant, that's why capital R, yellow, it is again dominant, capital Y, right? And the second parent has got recessive characteristics, मतलब राउंड का ऑपोजिट है रिंकल, तो राउंड कैपिटल आर के जगह स्मॉल आर यूज़ किया जाएगा. एंड ग्रीन इज अगेन रिसेसिव, लेकिन है किसका रिसेसिव? येलो कलर का, राइट? सो स्मॉल वाई वी हैव टेकन, राइट? दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स of one parent, or we can say the genotypic presentation of both the parent number 1 and parent number 2. Now we are going to cross these parents. When these parents are being crossed, अब आप देखो कैसे गैमेट्स बनेंगे. तो गैमेट्स बनाने के लिए ये R और ये R सेम है, कैपिटल R सेम है, तो एक R हम ले लेंगे. देन नेक्स्ट इज कैपिटल Y एंड कैपिटल Y, दो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, दोनों के हमें स्पेशल रिप्रेजेंटेटर चाहिए, तो येलो सीड का एक, right? So this is the gamete produced by the first parent. Now second parent, उसका हम लेंगे small r and small y. Now this is the gamete produced by the second parent. And now this capital R and capital Y fuses with small r and small y. So the resultant product will be capital R, small r, capital Y, small y. अब क्या करना है? You take a notebook and try to write it down. Then you'll understand. Now what have you obtained? This red color image. What have you obtained? This is the first filial generation. What is this? First filial generation. जो first F1 generation है, इसके characteristics कैसे हैं? ये दिखने में कैसा होगा? ये होगा round, क्योंकि R dominant है. ये होगा round and yellow seeded, round and yellow seeded. अब इस R, कैपिटल R, स्मॉल R, कैपिटल Y, स्मॉल Y के साथ, मतलब जो F1 जनरेशन है उसकी सेल्फिंग की जाएगी, मतलब सिमिलर जीनोटाइप के साथ हम क्रॉस करेंगे. सो दिस इज वन पेरेंट एंड दिस इज द सेकेंड पेरेंट. सो सिमिलर के साथ जो क्रॉस किया, so the resultant product will be called as F2 generation, for which we have to make gametes. अब ये दो parent है, this is parent number 1 and this is parent number 2, right? Now gametes, how are we supposed to make gametes? Now listen very carefully. इस R को हमें दोनों characteristics चाहिए, ठीक है ना? I'm just teaching you with one so that next you can make it. This is capital R which is taken with capital Y. तो हमारा पहला हो जाएगा capital R and capital Y. Next, ये capital R will go with small y. तो हमारा बन जाएगा capital R and small y. अब हमने कैपिटल R और कैपिटल Y को क्रॉस किया. कैपिटल R का हमारा
हो गया, विल जस्ट रूल आउट. नाउ स्मॉल आर विल बी क्रॉस्ड. सो स्मॉल आर को हम लोग I'll take अदर कलर. स्मॉल आर को हम कैपिटल वाई के साथ क्रॉस करेंगे तो हमारा रिजल्टेंट प्रोडक्ट बनेगा स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई. अब फिर से स्मॉल आर को स्मॉल वाई के साथ करेंगे तो हमारा रिजल्टेंट प्रोडक्ट बनेगा स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई. So this is how you make the gametes for dihybrid parent, right? ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है आर का. इसको हमेशा ये सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ कंबाइन करना पड़ेगा. कैपिटल आर को वाई के साथ कंबाइन करना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट में कैपिटल आर को स्मॉल वाई के साथ. ऐसा नहीं होता. अब आप बोलोगे कैपिटल आर को स्मॉल आर के साथ क्यों नहीं कंबाइन किया? बिकॉज दे बोथ रिप्रेजेंट वन कैरेक्टरिस्टिक्स, इसलिए हम उसको नहीं करेंगे. They are just representing one. One is dominant, other is recessive. Round and wrinkled. राउंड को हम येलो के साथ करेंगे और राउंड को हम ग्रीन के साथ करेंगे. दैट इज़ हाउ इट इज़. राउंड को कभी रिंकल्ड के साथ नहीं करेंगे. ओके जब हम रिंकल्ड को करेंगे फिर रिंकल्ड को येलो के साथ और ग्रीन के साथ करेंगे. दिस विल बी वेरी क्लियर टू यू वेंस वी आर इन द क्लास एंड वी आर डूइंग 2-3 एग्जाम्पल्स. बहुत अच्छी तरह हो जाएगा. डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट रिलैक्स. नाउ व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट विच आई एम ट्राइंग टू से. अभी जो हमारे हाथ में है, what do we have? We have got, let's just rub everything. What do we have right now? We have gametes, right? दोनों parents similar थे तो gametes भी similar हैं. So it's not difficult for you to understand, right? अभी हम बनाएंगे Punnett square. तो Punnett square के अंदर we are going to write down the exact what is available with us. पहला अभी हम लोग क्रॉस बनाएंगे ऐसे ऐसे. फर्स्ट वन ये ऊपर लिख, इसको हम लेंगे. ये मेल का भी होगा कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई, और फीमेल का भी होगा कैपिटल आर कैपिटल वाई. नेक्स्ट कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई, कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई. Right? Then we are going to write small r and capital Y. Small r and capital Y. And the fourth one is small r and small y. Small r and small y. ठीक है. अब हम इसको ब्लॉक्स बना देंगे, राइट. नाउ हाउ विल वी राइट इट? इट्स वेरी सिंपल. दिस वाज मेल एंड दिस वाज फीमेल. तो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई. दिस इज वन F2 जनरेशन, फर्स्ट वन. देन यहाँ से कैपिटल आर यहाँ आ जाएगा, इधर का कैपिटल आर फिर इधर आ जाएगा. देन कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई. बन गया. लाइक दिस यू आर गोइंग टू मेक द रिमेनिंग 14 पॉसिबल जीनोटाइप. ओके इट्स वेरी सिंपल. लेकिन एक चीज़ याद रखो, जो हमारे पास रिजल्टेंट प्रोडक्ट है, बेशक ये आर वाई के साथ था तो भी आर की क्वालिटी वो छोड़ता नहीं है. इट हैज़ द क्वालिटी ऑफ इट्स ओन. दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. लेट्स गो. See, let's read this. We'll read this. When hybrid F1 जो हमें मिला था, राइट, हमें F1 क्या मिला था? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, राइट. दो कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ जो मिला था. फॉर्म्स गैमेट. जब ये गैमेट बनाता है, इसका हमने सेल्फिंग किया था ना, एक ये था और दूसरा भी वैसा ही वैसा था ना, जो हमने सेल्फिंग करते वक्त इसके गैमेट्स बनाए थे. अभी आई टोल्ड यू ना, दिस कैपिटल आर विथ वाई, दिस कैपिटल आर विथ स्मॉल वाई.
then small r with capital Y, then small r with small y. तो ऐसे हमने gametes बनाए थे, right? When hybrid, this is the hybrid, forms gamete. Let's read it once again. When hybrid, F1 का जो hybrid हमें मिला, वो जब gamete बनाता है, हमने 4 अलग gamete बनाए थे. The alleles segregate from each other. जो हमारे पास options आए थे, allele मतलब R is one allele, small r is another allele, capital Y is one allele, small y is one allele, right? These alleles separate or segregate from each other, enter into different gametes. अभी सब एक साथ हैं, लेकिन स्टिल जब वो गैमेट बनाए थे, ये R इसके साथ भी जुड़ा था, इसके साथ भी जुड़ा था, बट इसने अपना कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं छोड़ा था. इट स्टिल हैज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स, बिकॉज जो जनरेशन बनेगा इट विल शो दिट्स its characteristics. So what do you mean by law of segregation? When hybrid forms gamete, the alleles segregate from each other. Okay, the alleles segregate from each other, enter in different gametes, and the gametes formed are pure, and they carry only one allele each. This is called as law of purity. So this law of segregation is also called as law of purity. So let's understand once again the understanding part. Okay, when a question comes, you have to write this whole thing. Law of segregation, that means जब F1 gamete बनाता है, F1 generation, F1 भी normal F1 नहीं है, ये hybrid F1 है, ठीक है. जब वो gamete बनाता है, alleles segregate from each other and they go into another gamete, दूसरे गैमेट बनाते हैं. हम लोगों ने ऑलरेडी कितने गैमेट्स बनाए थे? 4 सेपरेट गैमेट्स बनाए थे ना. प्यूनिट स्क्वायर अभी बनाया था, जिसमें हमने मेल के गैमेट्स 4 गैमेट्स बनाए थे, 4 वेराइटी, राइट, एंड फीमेल के भी 4 वेराइटी. लेट्स टॉक अबाउट द एक्सप्लेनेशन वंस अगेन. दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट एलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग. ऐसा नहीं होता जैसे हम पोस्टर कलर को रेड एंड वाइट मिक्स कर देते हैं तो रेड की भी क्या क्वालिटी चली जाती है, वाइट की भी क्वालिटी चली जाती है, मिलता क्या हमें? पिंक. तो वैसा नहीं होता. दैट इज़ व्हाट मेंडल सेड, राइट. सो दे डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग और मिक्सिंग. बोथ द एलील्स आर रिकवर्ड इन सच अ वे इन F2 जनरेशन, दो वन ऑफ दीज आर नॉट सीन एट F1. ये हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस में पढ़ा कि पहले F1 जनरेशन में जो रिसेसिव था वो दिखता नहीं था, बट स्टिल उसके एलील्स जो थे छुपे हुए थे, राइट. जब F2 आता है तो उसमें प्रेजेंट था, राइट. दैट इज़ व्हाट दे आर सेइंग. सो सिंपल है, इट्स वेरी सिंपल. जस्ट लिसन टू इट वंस अगेन, लिसन टू इट अगेन. डायहाइब्रिड क्रॉस देखो, इट विल बी वेरी क्लियर टू यू. ओके.